Hello, dear students. In this new lecture series, we will discuss W.B. Yeats' celebrated poem, The Lake Isle of Innisfree. काफ़ी प्रसिद्ध कविता है ये and Yeats composed this poem in 1888 while he was walking on the streets of London. जब लंदन की सड़कों पर वो चल रहे थे while he was going somewhere, and at that point of time this poem came out as a sudden memory from his childhood, we can say reminiscences. Yeats used to spend his summer vacation as a child near Log Gill. He has described the inspiration, he has written it somewhere, that the inspiration for writing this poem came from his memory of these childhood reminiscences while walking on the streets of London in 1888. This poem was published in 1890, and as I told you that this is a celebrated poem of W.B. Yeats, and it's one of his most popular creation. This poem also features in Irish passports. जैसा कि आप जानते होंगे W.B. Yeats जो हैं, he was an Irish poet, and he, whatever his writings and creations are, he was actively participating in political things also. So he made his effort to give Ireland a different and individual identity apart from the set English pattern, we can say. On the pattern, whatever pattern it was, the English poems or English literature was going on, he tried to make a different niche for the Irish literature. So in this context, his contribution is remarkable. Besides that, as we know that he was born in 1865 in Ireland, near Dublin. In 1865 he was born. And besides his literary creations, in 1922 he was elected as a senator to the Irish Free State, and for his contribution in the field of literature, he was awarded the Nobel Prize in 1923. 1923 में इनको Nobel Prize मिला था. So it was a great achievement, so to say. So in this way, we see that he has a different niche in English literature, in the sphere of English, in the history of English literature, we can say. In this poem, let us talk back up about this poem. This poem is a 12-line poem, and it has 3 quatrains. 12 लाइन की ये कविता है और इसके अंदर 3 क्वार्ट्रेन्स हैं. एंड क्वार्ट्रेन्स, आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग, मैंने अपने सोनेट्स का जो सीरीज था उसमें भी डिस्कस किया था. क्वार्ट्रेन इज अ स्टैंजा ऑफ 4 लाइन्स. तो देयर आर 3 क्वार्ट्रेन्स, इट मेक्स इट अ 12 लाइन पोएम. तो बेसिकली इस कविता में जो है why we can say this poem became so popular, we will discuss it further. W.B. Yeats has discussed his desire to leave the hustle and bustle of London and go into the natural surroundings of the Lake of Innisfree. This Lake of Innisfree is situated in Log Gill Lake in Sligo in Ireland, his home country. तो ये एक लेक है
स्लाइगो एक प्लेस है वहाँ इन आयरलैंड. एंड एज वी डिस्कस कि ये बचपन में ही यूज टू स्पेंड हिज समर वेकेशन देयर एज अ चाइल्ड, एंड इट left a permanent, we can say, nostalgic memory on his mind, and somewhere he found his corner of peace and calm at this place. So while he was walking on the streets of London, and his sudden memory, this sudden memory rushed to to his heart, and then this poem was born, we can say. तो इस कविता में वो जो हमारे पोइट हैं W.B. Yeats, ही एक्सप्रेसेस हिज डिज़ायर टू गो अवे फ्रॉम लंदन, से जाने का उनकी इच्छा है, उनका दिल करता है, ही वॉन्ट्स टू लीव द बिजी एंड नॉइजी लाइफ ऑफ लंदन और एक पीसफुल और काम लाइफ लीड करना चाहते हैं. दिस डिज़ायर ही has expressed in this poem. And yes, we were discussing this point that why this poem became so popular. Maybe this desire of rushing here and there, I mean leaving the busy and noisy life, somewhere at some point of time maybe everyone can relate with it, because हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ stress भाग दौड़, and sometimes we just want to run away from it and go at some calm and serene place. So this poem gives us that solace, वो एक शांति और कंफर्ट है जो ये कविता हमें देती है. तो आई हैव डिवाइडेड दिस पोएम इनटू 3 पार्ट्स. इन 3 lectures I will cover this poem. In this first video I have given you the introduction about the poem के बारे में मैंने आपको कुछ जानकारी दी है, और फर्स्ट स्टैंजा मैं डिस्कस करूंगी. सेकेंड और थर्ड स्टैंजा, जो सेकेंड और थर्ड क्वाट्रेन है, दैट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. सो लेट अस स्टार्ट दिस पोएम. आई विल रीड आउट द लाइन्स. I will arise and go now, and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee loud glade. So here, as we see, the poet is expressing his desire. जो कवि हैं W.B. Yeats, ये अपनी एक इच्छा जो है वो इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, that he will arise. He just want to get up. Arise होता है उठना. तो वो चाहते हैं, कई बार हम चाहते हैं, हालांकि ऐसा हो नहीं पाता. And he says that he just want to get up and go now, instantly. Now means instantly. वो तुरंत चाहते हैं कि वो अभी उठें और चले जाएं. और कहाँ चले जाएं? And go to Innisfree. Innisfree, जैसे अभी मैंने आपको बताया, the island of Innisfree, which is situated in Lough Gill Lake. इसको आप प्लीज नोट कर लीजिए. I will repeat. LOUGH, Lough Gill, GILL, Lake, LAKE. ये आपकी बुक्स में भी ज़रूर दिया होगा, तो यू कैन राइट डाउन फ्रॉम देयर एज वेल. एंड इट इज़ अ प्लेस नियर स्लाइगो, SLIGO, एंड दिस प्लेस इज सिचुएटेड इन आयरलैंड. तो आयरलैंड में स्लाइगो नाम की जगह है जहाँ पर लॉग गिल लेक है, और वहाँ जो है ये लेक ऑफ इनिसफ्री इज सिचुएटेड देयर. तो वहाँ ये जाना चाहते हैं. हिज डिज़ायर इज़ टू गो देयर. एंड एज वी नो दैट, क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि अपने बचपन का एक हिस्सा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट उन्होंने वहाँ अपने समर वेकेशंस में जाते थे. एंड एज वी ऑल कैन अंडरस्टैंड, जो चाइल्डहुड मेमोरीज होती हैं, इट ऑलवेज रिमेन्स विद अस. तो वो हमेशा बनी रहती हैं. तो समवेयर ही हैज़ that happy memories in his heart, and then he wants to go back to those things. तो वहाँ वापस जाना चाहते हैं. तो वो कहते हैं कि I will arise, I just want to get up and go instantly
टू द आइलैंड ऑफ द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। मैं तुरंत वहां जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू सेटल देयर, मैं वहीं रहना चाहता हूँ, सिर्फ जाना नहीं चाहते, मैं वहां रहना चाहता हूँ। और मैं क्या करना चाहता हूँ, एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर। मैं आई वॉन्ट टू मेक अ स्मॉल केबिन, अ स्मॉल हट। मैं एक छोटी सी हट बनाकर आई वॉन्ट टू लिव देयर। ऐसी मैं एक कॉटेज आई वॉन्ट टू मेक देयर, और मैं उसको बना के वहाँ आई वॉन्ट टू रिजाइड देयर, RESIDE। आई वॉन्ट टू लिव देयर, मैं वहाँ रहना चाहता हूँ। और जो कॉटेज मैं वहाँ बनाऊंगा, अ केबिन बिल्ड देयर, वो कैसे कॉटेज होगा, वो कैसी हट होगी। इट डजंट वॉन्ट टू बिल्ड अ ग्रांड हाउस। ऐसा नहीं है कि वो कभी ऐसा होता है कि जीवन में हम पहले शुरू इनिशियल स्टेज पे वी वांट टू achieve a lot of things, and then after crossing that process of achieving so many things, तो बहुत हसल बसल लाइफ में भाग दौड़ होती है। and after all those material pursuits, PURSUITS, there comes a point, एक समय आता है जब हम उन सबको छोड़कर एक पीसफुल लाइफ पाना चाहते हैं। तो उस तरह की बात यहाँ पर WB ईट्स कर रहे हैं कि मैं वहाँ एक कुटिया बनाकर एक कॉटेज में रहना चाहता हूँ, और वो कैसी होगी, ऑफ क्ले, मिट्टी की, एंड वेटल्स मेड। इट विल बी मेड ऑफ क्ले एंड वेटल्स, आप कह सकते हैं जो टहनियाँ, ट्विग्स जो होती हैं, द स्मॉल ब्रांचेस ऑफ द लीव्स, तो उसकी मैं वहाँ पर एक कुटिया बनाकर रहना चाहता हूँ। वी ऑल नो जो इस तरह की झोपड़ियाँ या इस तरह की कॉटेजेस हमारे इंडियन कल्चर में भी पहले हुआ करती थी, तो वी हैव सीन स्टिल, अभी गांव में कहीं कहीं हमें वो सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो इट समवेयर कनेक्ट्स अस विद द नेचर, नेचर के साथ वो कनेक्ट भी होती हैं, बिकॉज ये ऑल दोज materials which are nature related, so they carry the natural positive vibration with them, so it gives solace to the mind of a person। और वो आगे देखिए कहते हैं क्या करना चाहता हूँ, 9 bean rows will I have there, I will sow bean roses there। मैं वहाँ एक बीन्स इज अ काइंड ऑफ वेजिटेबल, तो आई विल ग्रो इट देयर। मैं वहाँ रहूँगा और मैं क्या करूँगा, आई विल मीन्स ही वॉन्ट्स टू ग्रो हिज ओन वेजिटेबल्स। मैं अपने लिए खुद सब्जियाँ उगाऊँगा, और क्या करूँगा, आई हाइव फॉर द हनी बी, एंड आई विल लाइक टू हैव अ हाइव मीन्स जो मधुमक्खी का छत्ता होता है जिसमें शहद जिससे हम निकाला जाता है। सो ही विल हैव सम स्वीटनर इन फॉर्म ऑफ नेचुरल हनी, वो मुझे वहाँ मिल जाएगा। एंड आई हैव फूड देयर दैट आई विल ग्रो माई सेल्फ, मैं खुद ही उसको उगाऊंगा। और क्या करूँगा, एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, एंड आई विल लिव अलोन, आई विल लिव पीसफुली। मैं वहाँ रहना चाहता हूँ अकेला। आई डो नॉट वॉन्ट एनी क्राउड अराउंड मी, मैं कोई भीड़ से दूर मैं रहना चाहता हूँ। और कैसी जगह पर, इन द बी लाउड ग्लेड, ग्लेड कहते हैं सम ओपन स्पेस इन फॉरेस्ट, किसी जंगल में जो खुला घास का मैदान होता है जहाँ पेड़ नहीं है, कुछ खुली जगह है, उसको ग्लेड कहते हैं। तो एक ऐसा आई वॉन्ट टू लिव इन अ ग्रास लैंड, और वो ऐसा है कि जैसे खुला मैदान है जहाँ मैं रहना चाहता हूँ, और वो कैसा हो, बी लाउड। हनी बी की भी हमने बात की, तो बी क्योंकि जहाँ बीज होती हैं दे बज ऑल्सो, वो उनका जो साउंड है उसको बज कहते हैं। तो वो उनके द साउंड एटमॉस्फेयर विल बी वी कैन से इट विल बी सराउंडेड विद द साउंड ऑफ बीज। बीज की जो है वहाँ जो नेचुरल इंसेक्ट्स हैं उनकी आवाज़ें वहाँ सुनाई देंगी। आगे के स्टैंजाज में हम और देखेंगे कि वहाँ क्या क्या चीज़ें जो हैं ही वॉन्ट्स टू एन्जॉय। तो बेसिकली ही वॉन्ट्स टू गो बैक टू नेचर टू एन्जॉय हिज calm and serene, and to lead a calm, serene, peaceful and a happy life. So this is his desire. तो ये पहला स्टेंजा है बेटा। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर आपको ये यूज़फुल लगता है, इफ़ यू फाइंड इट इज़ यूज़फुल for you, it may be useful for your friends also, so please share with them, and please subscribe to my channel also, it will encourage my efforts। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मेरे चैनल को पसंद करेंगे। थैंक यू।